Hello and welcome to history classes. This is class 9 Seba History textbook and we are doing chapter number 5, which is beginning of the British administration in Assam. So let us begin. So British ने occupy कर लिया था Assam को and the Burmese had left Assam for good. Treaty of Yandabu was signed. So तब British soldiers station किए गए थे Assam में. So in 1826 जब finally British won Burmese war, सो असम लाइट इन्फेंट्री नाम का एक आर्मी का सेक्शन फॉर्म किया गया था तो परमानेंट ब्रिटिश सोल्जर्स असम से चले गए थे सो इस असम लाइट इन्फेंट्री में कौन इंक्लूडेड था हिंदुस्तानी गोरखास मणिपुरीज एंड रंगपुर लोकल कॉर्प्स असम लाइट इन्फेंट्री का एक सेक्शन स्टेशन था विश्वनाथ में एंड another section was stationed at Sadia. Okay. So अभी पढ़ते हैं reforms in the revenue system. So revenue is the nothing but income of the government. Okay. So colonial interest was supreme for the East India Company or the British ruling in India. The reason why they started ruling in India, made India into a colony, was nothing but the robust revenue system that they created, जिसके तहत उनको profit होता था. Okay, so let us see how. Apart from military and civil administration, they always counted on the profit from revenue collection. उनके लिए military civil administration से ज़्यादा important revenue collection था because it was on this basis that their colonial interests were serving the purpose. Because colonial interest क्या था? The main interest was that British needed money to plant factories in England. Okay, so because तब अगर आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे 18th या 17th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था जिसके तहत एक मशीन मेड गुड्स ने डोमिनेंस ले लिया था इंग्लैंड का जो डोमिनेंस है वो पूरी दुनिया पे छाया था बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रीज को प्लान करने के लिए उसको चलाने के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की या फिर मनी की सो इतना सारा मनी और कहाँ से आता सो दैट इज वाई कॉलोनियल इंटरेस्ट या फिर कॉलोनियलिज्म या फिर इम्पेरियलिज्म स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश द्वारा या फिर यूरोपियन कंट्रीज द्वारा सो जिसमें से कॉलोनीज लाइक इंडिया प्रोवाइडेड देम विद रॉ मटेरियल्स विद कैपिटल एज वेल एज देयर मार्केट ऑल्सो ओके तो इसकी वजह से ही इंग्लैंड और ब्रिटेन बना जो वो बहुत ही बड़ा कंट्री बना only because of industrial sector and because of the revenue system because all they needed was money to function properly. Okay, so बस यही उनका इंटरेस्ट था कॉलोनियल इंटरेस्ट इंडिया में रूल करने का मकसद उनका कॉलोनियल इंटरेस्ट या फिर मनी ही था सो ब्रिटिश को मनी से मतलब था सो व्हाट दे डिड वाज दे इम्पोज न्यू टैक्सेस इन असम जब असम को ऑक्युपाई किया तो उन्होंने भी न्यू टैक्सेस इम्पोज करना सही समझा इन ऑर्डर टू एक्युमुलेट कैपिटल सो अपर असम में क्या था पायक सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया उनको जिसके तहत आहूम किंग्स को सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे थे उनको सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं था दे जस्ट वांटेड मनी पैसा सो ऑल द पायक्स हैड टू पे अ सम ऑफ ₹3 फॉर द कल्टीवेटेड लैंड्स होमस्टेड एंड गार्डन्स तो वो जो भी लैंड कल्टीवेट करते थे या फिर उनका जो होमस्टेड था या फिर गार्डन्स था तो पायक्स जो थे फॉर्मर पायक्स दे हैड टू पे ₹3 फॉर दैट as taxes and the खेल जो formerly इन पायक्स को organize करता था या फिर govern करता था it was entrusted with the responsibility of collecting the revenue from them for the British. Okay, so we see that Ahom aristocracy या फिर जो former officers थे अपर असम में आहूम के उनको रिटेन रखा गया so the company was not directly involved with the common people or collecting the revenue बीच में खेल या फिर another आहूम aristocracy के officers को बीच में they form the middle intermediary
जिसके थ्रू कलेक्शन करवाया जाता था रेवेन्यू. So general management of revenue was bestowed upon a person called Janardhan Barborwa, and Janardhan Barborwa was assisted by the Ahom officers Hazarika, Saikia, and Bora. And the districts were divided into mozas. Several divisions कर दिए गए districts के, and they were divided into mozas. And officers हर एक मौजा में अपॉइंट किया गया जिसको बोला जाता था मौजादार. And they were entrusted with the responsibility of collecting revenue from their mozas for the British, obviously. So revenue collection in Raha and Nagaon was done by Aradhan Rai and Latipani Fukan. Okay, and Raha and Nagaon was under Guwahati's jurisdiction. So Upper Assam में तो सीन था कि Ahom aristocracy was the intermediary, but Lower Assam में क्या था, कलेक्शन जो होता था वो कंपनीज के द्वारा डायरेक्टली किया जाता था. मतलब ब्रिटिश डायरेक्टली was involved in collecting the revenue from Lower Assam. Okay. And the small kingdoms of Darang, Dimoria, Beltona, and Rani were paying revenue at a fixed rate to the company. And Lower Assam में परगाना डिवीजन होता था, so उसको रिटेन कर दिया गया. ठीक है. And it was placed under the charge of Chaudhary. So Saristadar, Tahabilidar, Patowaris, and Thakurias were given the responsibility to collect the revenue. So these people, these official designation, these officers were given the responsibility to collect revenue. तो आज ये एक टाइटल बन गया है. ओके. तब ये एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन था. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, और किसी किसी का आप में से टाइटल भी हो सकता है ये. So professional taxes were also imposed. So सिर्फ लैंड रेवेन्यू से कलेक्शन नहीं हो रहा था ब्रिटिश के लिए. उन्होंने जो प्रोफेशंस है, लाइवलीहुड्स है, ऑक्यूपेशंस है, उनके ऊपर भी टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया. अगर आप आयरन स्मिथ है, आपको भी टैक्स देना पड़ेगा. पॉटर है, आपको भी टैक्स देना पड़ेगा. अगर आप हर्ड करते हैं, ओके, एनिमल्स को पालते हैं, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा. So yeah, they imposed professional taxes as well. Taxes were also imposed on rent-free lands like Devotar, Brahmatar and Dharmotar. So ये तीनों एक स्पेशल कैटेगरी के लैंड्स होते थे. ओके, प्रीवियसली बिफोर द कॉलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश. तो इनमें क्या होता था, ब्राह्मण्स या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एक लैंड ग्रांट दिया जाता है या फिर लैंड्स दिए जाते थे बाय द किंग या फिर जो भी अथॉरिटी, और उनके ऊपर दे कुड मेक टेम्पल्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या फिर रह भी सकते थे. तो इन लैंड पे जो भी प्रोडक्शन होता था, क्रॉप या जो भी प्रोडक्शन होता था, उन पे सिर्फ और सिर्फ वहां के रहने वाले पे अधिकार था. उससे कोई भी टैक्सेस, कुछ भी कलेक्शन नहीं होता था बाय द किंग. बट ब्रिटिश ने इन पर भी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया. And उस टैक्स को they didn't call it as a tax. Instead, the British called that as contribution. So British ने पहली बार लैंड को अच्छे से सर्वे किया. असम में लैंड्स को सर्वे किया कि कौन सा लैंड काम का है, कौन से लैंड पे ज्यादा पॉपुलेशन है, पीपल रह रहे हैं हट वगैरह बना के, एंड कौन सी एकदम बंजर जमीन है जिसपे कुछ उगाया ही नहीं जा सकता. तो ये सर्वे करने का मतलब यही था कि लैंड को प्रॉपरली डिवाइड किया जाए कैटेगरीज में, और जो लैंड की कैटेगरी जो सबसे अच्छी है, जो उपजाऊ है, जिसमें बहुत अच्छे से क्रॉप्स उग सकते हैं, उनसे ज्यादा परसेंटेज में रेवेन्यू कलेक्शन होगा, ताकि उनसे कम ना छूट जाए. ओके, रेवेन्यू कलेक्शन कम ना हो जाए. तो लैंड की क्वालिटी के हिसाब से उसलिए उन्होंने ये डिवाइड कर लिया. तो लैंड्स वर क्लासिफाइड इनटू बस्ती लैंड्स, एरेबल लैंड्स एंड बैरन लैंड्स. So basti lands where bastis were living, यानी कि हट्स वगैरह, यहाँ पे क्रॉप्स कल्टीवेशन भी अच्छे से हो रहा था, वो लैंड्स था. इनसे ऑब्वियसली उनको मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था. एरेबल लैंड्स वेर फिट फॉर कल्टीवेशन, जिसको कल्टीवेट किया जा सकता है अच्छे से. ओके. एंड बैरन लैंड्स वेर जिसपे कुछ उगाया ही नहीं जा सकता. ठीक है. So that was all for today's class. Thank you and see you in the next class.